It's a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that we have once again the opportunity to gather here in the masjid and talk about the teachings of Rumi and Iqbal. This is our 5th session, alhamdulillah, and I think we are doing pretty good. There is tremendous need for us to realize that there are things that we have in our heritage, in our past, in our lives that we have to pass on to the future generations. For that, anything and everything that we can do to really contribute to the resources here and to build some resource for our future generations, we ought to do it. I hope that this will be one of the steps whereby our youngsters in years to come will be introduced to the scholars that we have had in the past, especially the Islamic scholars who have talked about Islam in poetry as well as prose, and who have really left a legacy for us to emulate and follow. So today we will have 2 sessions, very brief. Firstly, I'll ask Professor HALQA-E-RUMI to please come and give us a little presentation about Maulana Rumi and his meeting with Shams Tabriz. Before she comes up, let me introduce her to you. Many of us know her, but some of you may not know the literary contribution, the literary background that she has. She's a professor. She has taught MA in poetry in Pakistan, and she has been a professor for a long time. She has a couple of books in prose, but more importantly, she has several articles that she has been contributing to periodicals and monthly magazines. And whenever we have any Urdu literary sessions in mushairas or other programs, she is one of those professors that is sought after to write the critique on subjects and also give analyses of new books as they come in. So she has been a tremendous asset to New York and indeed to the United States. Her talents I can't even begin to count, but I'm sure when she comes up and she talks to you, most of her talk will be in Urdu, but I will give you the summary at the end if you prefer in English also. I don't see many people that really need that, so I think we'll leave it at Urdu. But please, Professor HALQA-E-RUMI. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी की तिलिस्माती और करिश्माती शख्सियत का अहाता करना मुमकिन नहीं। एक छोटा सा मजमून मैं बात की नज़र करूँगी। यादगारे ज़माना है हम लोग, यादगारे ज़माना है हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। मौलाना रूमी का नाम मोहम्मद, लक़ब जलालुद्दीन और अनवान शोहरत मौलाना रूम है। अब 30 सितंबर 1207 को खरासान के शहर बल्ख में पैदा हुए और 17 दिसंबर 1273 को दुनिया से पर्दा फरमाया। आपने अपनी 67 साला ज़िंदगी में शायरी, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा और रूहानी और मजहबी इल्म में इस कदर कमाल और उरूज हासिल किया कि आज 800 साल गुजर जाने के बाद भी मौलाना रूमी अहद हाज़िर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले बाकमाल फ़लसफ़ी शायर गर्दाने जाते हैं। मौलाना कासिम नानतवी फरमाया करते थे कि 3 किताबें अनोखी हैं। पहली कुरान मजीद, दूसरी बुखारी शरीफ और तीसरी मसनवी मौलाना रूम। मौलाना जामी ने मसनवी मौलाना रूम की अज़मत का एतराफ़ कुछ यूँ किया है: मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी। शेख सादी से जब पूछा गया कि फ़ारसी ज़ुबान में बेहतरीन शायरी का नमूना किसे करार दिया जा सकता है, तो उन्होंने मौलाना रूम के अशार मुंतखब फरमाए। अल्लामा इकबाल मौलाना रूम की अज़मत का इजहार करते हुए फरमाते हैं: न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से, वही आबो गिले एरा वही तबरेज़ है साथी। बिलाशुबा मसनवी मौलाना रूम एक अल्हामी किताब है। मौलाना रूमी खुद फरमाते हैं
काफिया अंदेशम मो दिलदार मन, गवीदन मन देश जुज दीदार मन। जब मैं काफिया सोचने लगता हूँ तो आसमान से आवाज़ आती है, ए जलालुद्दीन मत सोच, मसनवी तो हम लिखवा रहे हैं, बस मेरी तरफ मतवज्जो रह, काफिया मैं अता करूँगा। मसनवी के इल्हामी होने के बारे में इससे ज़्यादा इशारा एक दूसरे शेर में है। चूँ फताद अज रोज़ने दिल आफ्ताब, ख़त्म शुद वल्ला वल्ला आलम सवाब बिस्सवाब, ख़त्म शुद वल्ला आलम बिस्सवाब। कलब में जिस दरीचाए बातनी से आफ्ताब इल्म के फैज़ से अलूम व मुआरफ वारिद हो रहे हैं, वो बहिकमत खुदाबंदी ग़ुरूब हो गया, लिहाजा मसनवी ख़त्म हो गई। और अल्लाह ही को खूब मालूम है कि सवाब व हिकमत किस चीज़ में है। लिहाजा अब मैं कलाम नहीं करूँगा और मसनवी को ख़त्म करता हूँ। यही दलील है कि यह कलाम अल्हामी था। अगर अल्हामी ना होता तो जो शख्स 28,000 शेर लिख सकता है, क्या चंद अशार और लिखकर मसनवी को पूरा नहीं कर सकता था? मौलाना रूमी ने मसनवी का छठा बाब नातमाम छोड़ दिया और फरमाया कि बाकी गुफ्ता आयद बेज़बां, दर दिल हर कस के वारिद नूर जान। जिस शख्स की जान में नूर होगा, इस मसनवी का बकिया हिस्सा इसके दिल में खुद ब खुद आ जाएगा। मौलाना रूमी अपने अहद के अकाबर उलमा में से थे। वो फ़िक़्ह और मज़हब के जय्यद आलिम थे। मौलाना रूमी के दौर की सदी तातारियों के सैलाब की सदी थी, जो लाखों मुसलमानों के खून से रंगीन है। लेकिन बकौल मौलाना शिबली और मौलाना सादी, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी और बुल सीना की ये सदी भी थी। मौलाना रूमी भी उन बुज़ुर्ग हस्तियों में से हैं जो गम उम्मत को सीने से लगाए इस्लाह बातनी और इस्लाह हाल के लिए कोशा थे। मोहम्मद जलालुद्दीन को मौलाना रूमी बनाने का सेहरा हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ के सर है। मौलाना रूमी की ज़िंदगी का दूसरा दौर हज़रत शम्स तबरेज़ से मुलाकात के बाद शुरू होता है। इस मुलाकात के बाद दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे से इस तरह वाबस्ता हुए कि 6 माह तक रूहानी और वजदानी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे और इस दौरान में दूसरी मसरूफियात तर्क कर दी। मौलाना रूमी के फ़र्जंद सुल्तान वल्द ने अपने वालिद पर शम्स तबरेज़ के असरात को अपनी किताब वल्दनामा में रकम किया है। आज कुनिया में मौलाना रूमी के मज़ार से 1 किलोमीटर के फासले पर हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ का मज़ार मौजूद है। मौलाना रूमी के यहाँ तसव्वुफ़ और इश्क़ इलाही एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज में नज़र आता है। वो अपने एक शेर में कहते हैं, इश्क मन पैदा व दिलबर ना बदीद, दर्द आलम आचुनी दिलबर के दीद। मेरा इश्क तो जाहिर है कि मैं रात को उठ रहा हूँ, वज़ू कर रहा हूँ, नमाज में हाथ बांधे खड़ा हूँ, हत्ता कि उशाक अपनी गर्दनें भी जहाद में कटवा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए ये अमाल मोहब्बत किए जा रहे हैं वो महबूब तो नज़र ही नहीं आता और वो निगाहों से पोशीदा है। इस पर हम ईमान बिल गैब रखते हैं। दोनों आलम में ऐसा महबूब कोई दिखा दे कि वो नज़र ना आए और बगैर देखे जिस पर अशाक अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। एक और जगह नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू रखने के बारे में फरमाते हैं, नफ्स फिरआन अस्त के आ सेरिश मकुन, ताना यादश आयद के आ कुफरे कोहन। नफ्स शैतान फितरत है, लिहाजा इसको ज़्यादा सैर मत करो, उसको बहुत ज़्यादा ग़ज़ा ना दो, घोड़े को इतना ज़्यादा खिलाना कि जिससे वो सवार को गिरा दे, नादानी है। बस इतना खिलाओ कि वो काबू में रहे, क्योंकि हर गुनाह के बाद ताकत गुनाह में लज्जत पैदा हो जाती है। मौलाना रूमी का दर्सो हिकमत सिखाने का अंदाज हकीमाना और फलसफियाना था। वो इतनी शेरियत और ख़ूबसूरती के साथ बात करते हैं कि कारी उसके सुरूर में डूब जाता है।
मादा परस्ती के अरूज और इंसानियत के मफकूद हो जाने के बयान को मौलाना रूमी ने अपने मुसलसल मजमून के अशार में बहुत फनकारी के साथ पेश किया है। ये अशार के दी शेख बाचराग हमी गर्द शहर से शुरू होते हैं। रूमी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हाथ में चिराग लिए कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत आप किस चीज़ की तलाश में हैं? बुजुर्ग ने कहा कि मैं जानवरों और चौपायों से उकता गया हूँ, मुझे इंसान की तलाश है। मेरे गिर्द जो इंसानों का मजमा है, मेरी तबीयत इससे बेजार हो चुकी है और मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। मैं एक शेर खुदा और रुस्तम ज़मा की तलाश में। मैंने अर्ज़ किया हज़रत आप अनका की तलाश में निकले हैं, यह हाथ आने वाला नहीं। बुजुर्ग ने कहा मियाँ यही तो मेरी बीमारी है कि जो चीज़ नायाब होती है मैं उसी की आरज़ू रखता हूँ। मौलाना रूमी कहते हैं कि तुम जिनको इंसान समझ रहे हो वो दर हकीकत इंसान नहीं है। ये शिकम सेरी और पुरखोरी के मारे और ख्वाहिशात के असीर थके हारे लोग हैं। मौलाना रूमी ईरान के शहर बल्ख से ताल्लुक़ रखते थे, जो उस ज़माने का सबसे मुतमद्दन शहर था और जिसको मशरक़ का यूनान कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा, जिसने शायरी, अदब और फ़लसफ़ा में बड़ा नाम पैदा किया। लेकिन मौलाना रूमी के इन अशार में अपने दिल के दाग और अपनी रूहानी कैफियत जो है वो उन्होंने नहायत दुख के साथ बयान की है। उन्होंने बुज़ुर्ग की ज़ुबानी दर हकीकत अपनी कहानी, अपनी आप बीती कही है कि इस बड़े शहर में और इस गुलजार शहर में, इस मुतमद्दन खित्ता ज़मी में भी सब इंसान नमा इंसान हैं, हकीकी इंसान कोई नहीं है। मौलाना रूमी के ये अशार आज 21वीं सदी में भी इंसान और इंसानियत के अनका होने की हकीकत बयान करते हैं और यही एक सच्ची और आफाकी शायरी की पहचान है कि वो हर दौर में ज़िंदा रहती है। मौलाना रूमी का ये पैगाम आज 5 तसानीफ़ की शक्ल में है। फ़ी माफ़ी मौलाना की तकारीर पर मबनी किताब है। मकतूबात मौलाना के खतूत पर मुश्तमिल है जो उन्होंने अपने दोस्तों और अजीज़ों को लिखे। मजाल से सबा मौलाना के खुतबात पर लिखी गई किताब है। दीवाने शम्स तबरेज़ जो दीवाने कबीर के नाम से भी मशहूर है, 50,000 अशार पर मुश्तमिल। ये दीवान मौलाना ने अपने उस्ताद शम्स तबरेज़ के नाम मासूम किया है। मसनवी मौलाना की वो तसनीफ़ है जिसने उन्हें हयात जावेदां अता की और शोहरत व अज़मत में शाहनामा फिरदौसी, गुलस्तान सादी और दीवान हाफिज से बहुत आगे निकल गए। मसनवी इल्म दानिश का एक ऐसा समंदर है जिसमें इश्क व दानाई, फ़लसफ़े और मज़ाहब के दरिया आकर गिरते हैं। मसनवी मौलाना रूम की अज़मत व इल्मियत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि अपने दौर के हर बड़े आलम ने, ख्वाह इसका ताल्लुक़ अदब से था या फ़लसफ़े से या इल्म शरीयत से, उसने इस मसनवी को सबकन इस तरह पढ़ा है जैसे ये कोई नसाबी किताब हो, क्योंकि मौलाना रूम की अजीम और सदाबहार शायरी को पढ़े और समझे बगैर हमारी इल्मी और शेरी तरबियत मुकम्मल नहीं होती। 17 दिसंबर 1273 की एक पुरमलाल शाम को फेफड़ों में पानी उतर आने के मर्ज के सबब मौलाना रूमी ने दुनिया से पर्दा फरमाया और अपने महबूब हकीकी से जा मिले। आप मौत के दिन को शब अरूज़ कहा करते थे। आज कोनिया की मिट्टी इस मर्द कलंदर के वजूद को समेटे अपने मुकद्दर पर नाजा है। पूरी दुनिया से हज़ारों अक़ीदतमंद रोज़ाना मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और रक़्स दरवेश से रूहानी सरूर हासिल करते हैं। 8 सदियों से मौलाना रूमी के पैगाम इश्क व दानाई का नूर मशरक़ और मग़रिब में फैल रहा है और अपने काफ़िले में सबको शामिल होने की दावत दे रहा है। सच तो ये है कि इल्म मोमन की मिरास है और वही इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। मौलाना रूम को मुर्शिद रूमी कहने वाले इकबाल का ख्याल है, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के तलबगार, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के तलबगार, एक बहरे पूरे इसरार व पूरा शोभ है रूमी।
نہیں ان کا بعد ہے.